था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, welcome to the presence of the living God. जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। Jesus said, I am the life. यीशु ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। If a man or a woman follows me, अगर कोई स्त्री या पुरुष मेरे पीछे चलता है, though he has been dead or he dies, he will still live. चाहे वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। Are you dead in your life because of your sinful addictions? क्या आप अपने पाप में आदतों के कारण अपने जीवन में मर चुके हैं? क्या आपकी आदतें आपको मार रही हैं? Have your organs died? क्या आपके शरीर के अंग मर चुके हैं? Do you say you're dead in your family life? क्या आप अपना परिवार का जीवन मरा हुआ देख रहे हैं? Do you say you're dead in your finances? या आप अपने आप को आर्थिक रूप में मरा हुआ देखते हैं? Jesus will resurrect you. यीशु आपको फिर से जीवित करेगा। You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. Tonight I'm going to talk to you about the burden of the Lord Jesus Christ himself. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बोझ के बारे में। The Bible says in John chapter 19 and verse 17, यूहन्ना 19 और वचन 17 में बाइबल जो है हमें बताती है, Jesus bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha.
कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं अपने क्रूस को उठा करके एक स्थान तक गए जिसे कि खोपड़ी की जगह या इब्रानी भाषा में गोलगता नाम से जाना जाता है या गोलगता कहा जाता है। Jesus took his cross. प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। The Lord Jesus Christ took his burden. प्रभु यीशु मसीह ने अपना बोझ उठाया। He took his weight. उनने अपना भार उठाया, The burden of the cross. क्रूस का भार। He took the burden upon himself. उसने उस बोझ को अपने ऊपर उठाया। That was Jesus Christ. ये था प्रभु यीशु मसीह। One side he was God. एक और वो परमेश्वर था Another side a perfect man. और दूसरी ओर एक सिद्ध मनुष्य भी था। Why he was a perfect man? वो कैसे एक सिद्ध मनुष्य था, क्यों था? That is what we are going to see today. और आज हम उसी के बारे में देखेंगे। Some years ago, कुछ साल पहले I read this story in the newspaper. मैंने समाचार पत्र में एक कहानी को पढ़ा था। A young couple, an engineer and his wife were charged with murder. एक युवा दंपति इंजीनियर की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। They have killed and murdered their own 9-year-old son. उनने स्वयं मिलकर के अपने 9 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। The judge was so upset. और जो जज था बहुत ही ज्यादा दुखित था। He said, उसने कहा, "What is this? You are an educated man. आप तो शिक्षित हैं, ये क्या बात है? You are a highly placed engineer. आप ऊंचे पद पर एक अभियंता हैं। Why should you do that? आपने ऐसा क्यों किया? Why did he do that?" आपने क्यों किया? That man said, उस व्यक्ति ने कहा, "Sir, महोदय, there were a lot of curses in my family. मेरे परिवार में बहुत ही ज्यादा श्राप थे, So much of curse. बहुत ज्यादा श्राप। Whatever I did was not prospering. मैं जो भी करता था वो उन्नत नहीं होता था। Lot of problem. बहुत समस्या थी, No peace. कोई शांति नहीं थी। So I went and consulted a magician. मैंने एक मांत्रिक से सलाह ली I went and saw a witchcraft man. और जादू टोने वाले से मैंने पूछा। He said, उसने कहा, if you can shed human blood to God, God will forgive everything and give you a blessed time. अगर तुम एक मनुष्य के लहू बहाओ तो परमेश्वर तुम्हें माफ करके तुम्हें एक धन्य आशीषित जीवन देगा। God wants human sacrifice. परमेश्वर को मनुष्य का बलिदान चाहिए। If you can shed the blood of a human, then God will forgive all your sins, remove every curse from your family. अगर तुम एक नर बलि देकर के उसका लहू बहाओ तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक पाप को माफ करेगा और उसके बदले वो तुम्हें आशीषों से भर देगा। I went and talked to my wife. मैंने जाकर पत्नी से बातचीत की We said, where shall we find someone to kill? और हमने कहा कि हम कहां से किसी को मार निकलना है। Finally, we said, we have 3 children. अंत में हमने कहा हमारे पास 3 बच्चे हैं। The first child is a perfect boy. पहला लड़का जो सिद्ध लड़का है, So we will finish him off. हम उसे खत्म कर देंगे। We will give him as a sacrifice. हम उस लड़के का बलिदान करके बलि चढ़ाएंगे। And I always imagine many things. मैं हमेशा कई चीजों की कल्पना करता हूँ। I imagine what would have happened that day. मैं कल्पना करता हूँ कि उस दिन क्या हुआ होगा। Probably they have given him a new dress, शायद उनने उसे एक नया पोशाक दिया होगा dressed him so nicely. और बहुत अच्छे से उसको सजाया He होगा। is so happy with the new dress. बच्चा नए कपड़े पाकर के बड़ा खुश हुआ होगा Probably he would ask his mommy, और माँ से पूछा होगा, "Mommy, माँ is this my birthday? क्या ये मेरा जन्मदिन है? Is this my birthday? क्या मेरा जन्मदिन है? Why this new dress?" आज ये नए कपड़े क्यों? She would have said, "You will see in a few minutes." और माँ ने शायद कहा होगा थोड़ी देर में तुम इस बात को देख लोगे। Probably she garlanded him as according to the Indian custom. और भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद उसको फूल का माला चढ़ाया होगा Probably the boy was so happy. और लड़का बड़ा खुश हुआ होगा Probably he said, "Oh, I look so fine in this garland." और कहा होगा कि ओ मैं तो इन सारी चीजों में बड़ा सुंदर दिखता But when their appointed time would have come, हूं। लेकिन जब वो निश्चित समय आया होगा they would have taken him into that room. वे उसे कमरे में ले गए होंगे, They would have tied his hands. उसके हाथों को बांधा होगा And he would have screamed, और वो चिल्लाया होगा, "Mommy, माँ why are you tying my hand? आप मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? Why are you tying my leg? मेरे पाँव को क्यों बांध रही हो? Mommy, I am afraid. माँ मुझे डर लग रहा है। Why are you doing this? आप ये क्यों कर रही हो? Mommy, माँ why are you doing this?" आप क्यों कर रही हो ऐसा? Probably the father would have come. शायद पिता वहाँ आए होंगे He would have brought a dagger. और एक खंजर लाए होंगे Probably he would have cried, और रोया होगा वो, "Daddy, पापा let me मुझे go. जाने दो, Daddy, पापा let me मुझे go. जाने दो, Why you are bringing the आप dagger? वो चाकू क्यों ला रहे हैं? I am afraid. मुझे डर लग रहा है, I am afraid. मुझे डर लग रहा है। Mommy, माँ tell daddy not to kill me. पापा से कहो मुझे मत मारे, Mommy, माँ, save me. मुझे बचाओ, Mommy, save माँ me. मुझे बचा लीजिए। But alas, लेकिन हाँ, both of them would have held him and he would have cut his throat. दोनों ने उसको पकड़ा होगा और उस व्यक्ति ने उसका गला काट दिया And they would have shed his blood before God. और अपने देवता अपने परमेश्वर के सामने शायद उसने अपने बेटे के लहू को वहां पर बहा दिया होगा। The judge asked them, और तब जो जज थे उनने उनसे प्रश्न किया,
Whatever it is, you have committed a murder. चाहे जो हो, आपने एक हत्या की है। I am asking them to hang you. आज्ञा देता हूं कि आपको फांसी की सजा हो। He sent both of them to the hanging loose. और दोनों को उसने फांसी के तख्ते पर भेज दिया। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, why did they do that? उन्होंने ऐसा क्यों किया? They wanted to come out of every curse. वे हर एक श्राप से बाहर निकलना चाहते थे। They wanted prosperity. वे जीवन में संपन्नता चाहते थे। They want to come out of the curse. वे हर एक श्राप से मुक्त होना चाहते थे, They never knew लेकिन नहीं जानते थे that the Son of God took every curse upon himself. कि परमेश्वर के बेटे ने अपने ऊपर में हर एक श्रापों को उठा लिया है। The Bible says बाइबल कहती है in Matthew 27:45, मत्ती 27:45 में 3 hours there was darkness around Jesus. यीशु के चारों ओर जब वो क्रूस पर लटके थे अंधेरा था। As he was hanging on the जब cross, वो क्रूस पर लटके हुए थे, there was terrible darkness all over. चारों ओर भयंकर अंधेरा छाया था। 3 hours the darkness was there. 3 घंटे तक अंधकार छाया था। He was in great वो agony. महान पीड़ा में था And he cried और वो out चिल्लाया। in Matthew 27:46, मत्ती 27:46 में, My मेरे God, परमेश्वर, my मेरे God, परमेश्वर, why has thou forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? This little boy cried ये out, बच्चा चिल्लाया, Daddy, पापा, don't kill me. मुझे मत मारो। That's what exactly Jesus Christ was crying. Yes, वैसे यीशु मसीह जो थे वो भी रो रहे थे। my मेरे God, प्रभु, why are you killing me? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? Why every curse is coming upon me? हर एक श्राप मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? I am unable to bear मैं it. इसे सह नहीं सकता। My God, मेरे परमेश्वर, my मेरे God, परमेश्वर, why has thou forsaken me? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? The Bible says बाइबल कहती है Jesus suffered on his body. यीशु अपने शरीर में दुख उठाता रहा, On his physical body he suffered. अपने भौतिक देह पर उसने कष्ट For सहे। you, आपके लिए, for you, आपके लिए, for you, आपके लिए, for you, my brother, और आपके लिए मेरे भाई, for you, my sister. आपके लिए मेरी बहन। Let me tell you this. मैं आपको ये बताऊं, The Bible says बाइबल कहती in है Colossians कुलुसियों chapter 2, अध्याय 2 14 and 15, 14-15 में Jesus Christ died on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, And when he died, और जब वो मरा, when he screamed, जब वो चीखा, My God, मेरे My परमेश्वर, God, मेरे why परमेश्वर, has thou forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? He took the 54 verses full of curses in the Bible and nailed them to the cross. तो उसने श्रापों से भरे उन 54 वचनों को लेकर के क्रूस पर उन्हें कीलों से जड़ दिया। All the curses were nailed by him on the cross. उसके द्वारा सारे श्राप क्रूस पर जड़ दिए गए। Let me die. मैं मर जाऊं, Let me die as a cursed man. मैं एक श्रापित मनुष्य की तरह मरूं, Let my people go free. लेकिन मेरे लोग आजाद हो, Let my people go free. मेरे लोग आजाद हो That जाएं। is the love of Jesus. ये है यीशु का प्रेम। Cheer up tonight. आज रात खुश हो, Cheer up tonight. खुश हो। No devil can touch a child of God. परमेश्वर के संतान को कोई शैतान छू नहीं सकता। No child of God can be touched by any witchcraft power. कोई जादू के द्वारा परमेश्वर की संतान छुए नहीं जा सकते। We have a great God. हमारे पास महान ईश्वर We है, have a great God. महान परमेश्वर है, God who took every curse upon himself. जिसने अपने ऊपर में हर एक श्राप को उठा लिया Let me be cursed. और कहा मैं श्रापित हूँ, Let me be cursed. मैं श्राप बन जाऊं, Let me scream. मैं रोऊं, But let my children sing joy. लेकिन मेरे बच्चे आनंद से गाएं, Sing songs of joy. वे आनंद के गीत गाएं। Are you afraid of the demon powers tonight? आज रात क्या आप शैतान की ताकतों से डरे हैं? Are you afraid of the demonic power? क्या आप शैतान की ताकतों के कारण से डरे हुए हैं? You need not. आपको डरना नहीं है। You have Jesus in your heart. आपके हृदय में यीशु मसीह है, You have Jesus in your soul. आपके प्राण में यीशु है। He will challenge the devil. वह शैतान को चुनौती देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Cheer up tonight. आज रात खुश होइए, Put up your hand and say hallelujah. हाथ उठा कर कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No devil can touch me. कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता, No devil can touch me. कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता। Say it with me. मेरे साथ ये कहे, Say it with me. इसे आप मेरे साथ कहे, No devil can touch me. कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता, No devil can touch me. कोई भी शैतान जो है वो मुझको छू नहीं सकता है। Amen. आमीन। Oh, we have a wonderful God. हमारे पास अद्भुत परमेश्वर है, Because He's alive. क्योंकि वो जीवित है, He's alive. वो जीवित है। Are you upset with curses? क्या आज आप अपने जीवन में श्रापों के कारण से परेशान हैं? Are you upset with problems? क्या आप समस्याओं के कारण परेशान हैं? Oh, God is with you. ईश्वर आपके साथ है। If you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम करें, oh, He will take away every curse. वो आपके हर एक श्रापों को ले लेगा। He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है, Be of good cheer. इसलिए आप खुश होइए। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father, पिता,
I pray along with your children. मैं तेरी संतानों के साथ प्रार्थना करता हूँ, Heal their sin, O इनके God. पापों को चंगाई दे मेरे परमेश्वर, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, wash them with the blood that you shed for them on the cross. पिता, इन्हें उस खून से तू धो दे जो तूने क्रूस पर बहाया है। Let their curses of sin be removed by your power. और इनके पाप के जो श्राप है तेरी सामत से पूरी तरह से निकाल दिए जाएं। Let their sinful addictions go in Jesus' name. और इनके पाप में बुरी आदतें यीशु के नाम में चली जाएं। And let thy peace fill them, Lord. और तेरी शांति इन लोगों को भर दे, Heal their bodies. इनके शरीर को तू चंगाई दे, Restore the joy in their job, in their family life. इनके परिवार में, इनके नौकरी में इनको आनंद दे, Restore the peace in their hearts with you, Lord Jesus. इनके दिल में तेरे साथ में शांति का आनंद दे प्रभु, And bless them. और इन्हें आशीष दे। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की रहने वाली बहन निशा का पारिवारिक जीवन बड़े आनंद पूर्वक अपने परिवार के साथ बीत रहा था, लेकिन एकाएक उसकी खुशियों पर ग्रहण लग गया जब उसके जीवन को दुष्टात्माओं और अंधकार की शक्तियों ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। जो भी जादू टोना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत फेस की। उसके लिए मेरे पेरेंट्स भी यहाँ वहाँ जाकर काफ़ी मेरे लिए ट्रीटमेंट कराते रहे। पहले तो डॉक्टर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करती थी, हमेशा मेरिट लिस्ट में रहती थी, लेकिन मेरा पढ़ाई बिल्कुल डाउन हो गया। फाइनली 12th आते आते मैं इतनी डिप्रेस हो गई, मैं पढ़ाई से डरने लग गई और मैंने 12th 1 साल एग्ज़ाम ही नहीं दिया। जैसे भी 12th क्लियर किया उसके बाद मैंने बी फार्मा में एडमिशन लिया। मेरा टारगेट डॉक्टर बनने का था। हर एक सेमेस्टर में मेरे साथ कोई ना कोई केस होता था। कभी एग्ज़ाम से पहले मेरा एक्सीडेंट हो जाता था, कोई ना कोई केस ऐसा होता था। वो सबको मैंने फेस को क्रॉस करते हुए फाइनली बी फार्मा करने के बाद मैं दिल्ली चली गई और मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में फिर जॉब करने लगी। निशा का विवाह एक होनहार पुलिस अधिकारी के साथ हुआ, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ समय तक ठीक चला। उसके बाद फिर हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े सब शुरू हो गए। ऐसा लगा कि अब हम दोनों साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जादू टोने का ही माहौल था, एक प्रकार से कह सकते हैं। शादी के शुरुआती समय में ही हमारे बीच इतना झगड़ा होता था। कुछ दिनों तक हम दोनों बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, साथ में एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। फाइनली मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब ये जॉब ही छोड़ देते हैं और हम छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाते हैं। उस बीच ही मुझे प्रेयर टावर के बारे में पता चला, तो दिल्ली में हमने प्रेयर टावर जाना शुरू कर दिया था। जब निशा उसके पति दिल्ली में यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन से वचन एवं प्रार्थना पाने लगे, तो परमेश्वर ने उनके पारिवारिक जीवन में एक नई शुरुआत करके उनके बंधनों को तोड़ना प्रारंभ किया। तो मुझे एकदम से पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फाइनली सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे वहाँ का जॉब छोड़ के यहाँ वापस रायपुर छत्तीसगढ़ आना पड़ा। अपने मम्मी पापा के पास में आई, मेरे हस्बैंड ही लेकर आए और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि हमने प्रेयर कराया, हम प्रेयर टावर गए और एकदम से ये हमें क्या न्यूज़ मिला। हमने ये प्लानिंग तो नहीं की थी अपनी लाइफ के लिए। लेकिन जब निशा रायपुर आई तो उसने तत्काल ही यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में जाकर हर एक समस्याओं के लिए और अपने बंधनों से मुक्ति के लिए वहां से प्रार्थनाएं प्राप्त करने लगी। और तब फिर यहाँ रायपुर में जो प्रेयर टावर है वहाँ मैंने जाना स्टार्ट किया। उस समय मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप एंटीबायोटिक ले लो, चाहे बच्चे को नुकसान हो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एंटीबायोटिक लेना ही पड़ेगा। प्रेयर मैंने यहाँ पे कराया, मेरी 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई, कोई मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद फिर हम प्रेयर टावर कंटिन्यू जाने लगे। फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कराया फैमिली ब्लेसिंग प्लान में। मैं उस समय एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, तो फिर मैंने अपने बेबी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, कुछ ड्रीम्स वगैरह आते थे। मुझे ऐसा डर लगता था कि शायद ये कोई गलत चीज़ है मेरे पास कि क्या होने वाला है, लेकिन वो हम प्रेयर कराते गए। फिर जब टाइम ऐसा आया कि एक टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, आपकी आई थिंक सिजेरियन होने का चांसेस है। तो सब चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैं यहाँ प्रेयर टावर जाती रही और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से मेरी एक बेटी हुई।
युवा सहभागी योजना में हमने अपनी बेटी का भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, उसे भी पार्टनर बनाया। पहले तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत दुखी थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन उसके होने के बाद हम लोगों को काफ़ी इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन एक लाइफ में मिला कि नहीं, इससे अच्छी चीज़ तो शायद दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। अभी हमारी बेटी होने के बाद हम लोगों में थोड़ी स्टेबिलिटी भी आई है, जो हम इधर उधर भागना चाह रहे थे, जो हम लोग इतने परेशान रहते थे, इतना अशांत था हम लोगों का लाइफ, जो इतना डिस्टर्ब था वो इतना स्मूथ अब चलने लगा और बहुत हम लोगों के बीच शांति आई है और काफ़ी अच्छा अब हम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच भी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। इन सारी आशीषों के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो हमारी एक प्रेयर टावर की जो फैमिली है, जो हमेशा हमारा बैक सपोर्ट बन के हमारे साथ चल रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह हर रोज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियों से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें। और अगर आप कईयों के आंसुओं को पोंछने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है सेवकाई के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन रोड, चेन्नई 600028, या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org।